Consumer Protection Act 1980. Now today we will discuss on the next point, need for consumer protection. Before that, we will revise the previous topic, Consumer Protection Act 1986, an act to provide for better protection of the interest of consumers, and for that purpose to make provision for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumers disputes and for matters connected with therewith. जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो जो कुछ डिस्प्यूट रहते हैं वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोई ऑथोरिटीज अपॉइंट किया जाते हैं और कुछ काउंसिल्स रहते हैं। वहाँ पर वो 3 लेवल्स रहते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक काउंसिल ये अथॉरिटी रहती है, देन स्टेट लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल पे। एंड इन दिस एक्ट is a 1986 implement an amendment in 2019 to extend to whole of India as well as nowadays Jammu and Kashmir. It shall come into force on such date as the central government may July 2019 with amendment so as authorized expressly provided by the central government of by notifications, and some definitions arise here. Here the appropriate laboratory means not a chemical laboratory, electronic laboratory, but it means a laboratory or organization recognized by the central government. And branch offices, some branch offices here. Branch offices means in establishment is described as a branch by the party, opposite party, in establishment carrying on either the same or sustainability the same activity as that carried on by the head office of the establishment. Then next concept is the complainant. Complainant means who is the complainant here? Complainant कौन होता है? यहाँ पर complainant कौन होता है? हेलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेनेंट कौन रहता है? आवाज आ रही ना? स्नेहा आवाज येतो का? हेलो, yes sir. okay. Consumer Complainant is a consumer. Consumer means any one person or any voluntary consumer association registered under the Company Act 1956. कंपनी के 1956 एक्ट के अंडर जो भी कंपनी रजिस्टर होती है वो, और एनी पर्सन हु इज द कंप्लेनर और कंज्यूमर, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट. Complainant means any allegation in writing made by complainant that an unfair trade practice or restrictive trade practices has been adopted by the trader. जो भी अनफेयर मीन प्रैक्टिस होती है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, वहाँ पर जो इसको हजार्डस होते हैं वो होते हैं कंप्लेनेंट. देन
consumers means any person who buys any goods for consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and issued goods. कंज्यूमर जो होता है वो कौन होता है कि गुड्स फॉर कंसिडरेशन परचेस करता है, बाय करता है जो गुड्स विथ कंसिडरेशन. देन एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who कौन होता है द सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड पार्टली प्रॉमिस. गुड्स परचेस किए या सर्विस अकॉर्ड किए वो कंज्यूमर के कंसेप्ट में आता है. देन कंज्यूमर डिस्प्यूट. डिस्प्यूट कब होता है जबकि मीन्स अ डिस्प्यूट फेयर द पर्सन अगेंस्ट whom a complaint has been made denies or dispute the allegations contained in the complaint. ये होता है अगर कुछ फॉल्ट है प्रोडक्ट में, कोई प्रॉब्लम है, सर्विसेज में कुछ डिफिकल्टी है, अच्छी तरह से सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही, तब होते हैं वहां पर कंज्यूमर डिस्प्यूट. और डिफेक्ट. डिफेक्ट मीन्स अ फॉल्ट, imperfection, shortcoming in quality, quantity, potential, purity, standard. इसमें जो डिफेक्ट होते हैं या क्वालिटी कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी बराबर नहीं होती है, वो जो पोटेंशियल है वो गुड्स का वो अच्छी तरह से यूज में स्टैंडर्ड नहीं, कई बार पैकिंग के ऊपर अलग क्वांटिटी लिखी जाती है और अपने को मिलती है एक्चुअल जो मिलती है वो क्वांटिटी कम रहती है, क्वालिटी में डिफरेंस आता है. कई प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं कि आउट ऑफ डेटेड चले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो एक्सपायरी डेट रहता है वो एक्सपायरी डेट चले जाती है, फिर भी वो बेचते रहते हैं. ऐसे बहुत सारे जो डिस्प्यूट रहते हैं तो डिस्प्यूट किस वजह से होते हैं, डिफेक्ट की वजह से होते हैं या डिफिशियंसी की वजह से होते हैं. डिफिशियंसी मीन्स फॉल्ट, अगेन imperfections, shortcoming, inadequacy in the quality, nature and manner of performance which is required to be maintained by or under any law of the time being force has been undertaken to be performed by a person in pursuance. Then जो ये रिड्रेसल होते हैं, ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए डिफेक्ट जो होते हैं, डिफिशियंसी होती है, इसके लिए डिस्प्यूट या सूट दाखिल किए जाते हैं और वो सॉल्व करने के लिए होते हैं फोरम्स. तो फोरम कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट इज द डिस्ट्रिक्ट फोरम. इट मीन्स अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एस्टेब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल. हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इस्टेब्लिश किया जाता है फोरम या रिड्रेसल कमिटी. देन ये किस लिए किया जाता है, सब जो है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है. कंज्यूमर इज अ गॉड, कंज्यूमर इज अ किंग, जो डेफिनेशन है उनके कंज्यूमर के, तो वो कंज्यूमर है. कंज्यूमर के नीड्स क्या है प्रोटेक्शन के, कंज्यूमर नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करके कंज्यूमर को कोई हजार्डस चीज नहीं पहुंचानी, डिफेक्टिव चीज नहीं पहुंचानी, या कुछ डिफिशियंसी है, क्वालिटी में कोई इशू है, ऐसी चीज वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए. देन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इम्पोर्टेंट हियर. कंज्यूमर सेटिस्फाइड होना जरूरी है. अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है तो अपने प्रोडक्ट का वो
हमेशा के लिए कंज्यूमर रहेगा, उसको किसी एडवर्टाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो। देन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस मीन्स जो जस्टिफिकेशन मिलना है अपने को बाय लॉ, बाय कोर्ट, वो अलग है, लेकिन सोशल जस्टिफिकेशन मिलना भी जरूरी है वो प्रोडक्ट के लिए। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं वो प्रोडक्ट वो नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट देखे अपने, गोदरेज है या सनफ्लावर ऑयल जैसे ऑयल से वो नाम से जाने जाते हैं। कई सोप है, इसलिए पुराने जो सोप है वो नाम से जाने जाते हैं, वही नाम लेके उनको पर्टिकुलरली नाम से वो जाने जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्हें वो सब चीजें फॉलो की है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जस्टिस उनको मिला है वहां पर, क्योंकि सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। जो गुड्स है, गुड्स मीन्स क्या? गुड्स मीन्स एज डिफाइंड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दे कैन परचेस सर्विसेज दे आर प्रोवाइडेड टू यू या कंज्यूमर्स को। देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप, ट्रस्टीशिप्स मीन्स क्या? अगर कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करता है तो वो ट्रस्ट का आदर करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर जो आपका रिलायबल है तो। रिलायबल से याद आया कि रिलायंस है, मैं एक बार रिलायंस में गया, रिलायंस मॉल में, कारकड़ा में रिलायंस मॉल है, वहां पर गया और वहां पर हर एक चीज के ऊपर लिखा रहता है आवर प्राइस, आवर वैल्यू, ऐसे लिखा रहता है। मतलब कि जो गुड्स की एमआरपी है, एमआरपी के बजाय उनका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो वैल्यू है या प्राइस है वो अलग रहती है। जैसे कि बेस्ट प्राइस में गए आप तो बेस्ट प्राइस का वैल्यू इतना है, उसका प्राइस इतना है, एमआरपी इतना है और डिफरेंस इतना है, ऐसे लिखा रहता है। लेकिन रिलायंस, रिलायंस में जाने के बाद में एक सोप का मैंने देखा, कुछ तो भी लक्स या लिरिल कुछ तो भी सोप था, तो सोप पे लिखा था कि आवर प्राइस 25 रुपीज, और मैंने देखा एमआरपी देखा तो एमआरपी कितना था? 25 रुपीज। तो उसमें डिफरेंस क्या है फिर? वो लोगों की मेंटेलिटी चेंज करने के लिए लोगों ने परचेस करना चाहिए आवर प्राइस। मतलब लोग समझेंगे कि अगर वो उसका 30 रुपीज प्राइस है या 27 रुपीज होगा, 26 होगा, तो 1 रुपया तो बेनिफिट होगा कस्टमर को, वो सोचते उनके दिमाग में रहता है। उन्होंने आवर प्राइस लिखा है 25 रुपीज। अगर अवेयरनेस है वो गुड्स के बारे में, वो चीज़ के बारे में, तो वो सोचेंगे, देखेंगे, वो प्राइस देखेंगे, एमआरपी देखेगा कस्टमर। तो देखने के बाद में वहां देखा मैंने कि 25 रुपीज था एमआरपी और उन्होंने और प्राइस भी देखा 25 रुपीज। तो वहां परचेस करने से क्या फायदा अपना? मतलब कि वो जो नाम है रिलायंस का, रिलायंस क्या? रिलायबल, हम रिलायबल है आपके लिए, तो वहां पर वो फॉलो नहीं करते वो नाम को, बराबर है। तो ऐसे कोई चीज रहती है, ऐसी कोई बातें रहती है कि जो कस्टमर के लिए अच्छी नहीं रहती, तो वहां पर आप कस्टमर, जैसे ये कॉमन बात थी, लेकिन कस्टमर वहां पर कुछ एक्शन ले सकता है। वहां पर अगर कई चीजें ऐसी होती है कि बाउंडफुल रहती है, देखिए कई फॉर्म रहते हैं अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन के, आप पढ़ते नहीं इतने सारा टर्म्स एंड कंडीशन, और सिग्नेचर करके दे देते। वहां पर लिखा रहता है नीचे छोटा सा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, या राइटिंग में रहती है या ओरली बताते रहते हैं, तो वो सब चीजें फॉलो नहीं होती। ऐसे टाइम में अभी नए कानून में ऐसा प्रावधान बनाया उन्होंने कि अगर ऐसा भी कोई धोखाधड़ी करता है, कुछ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, या उनको कन्विंस किया जाता है कस्टमर को इसी तरह से, और उनसे सिग्नेचर लेके वो कंडीशन में उनको बाइंड किया जाता है, फिर भी कंज्यूमर की तरफ से वहां पर रिजल्ट लगेगा।
लॉ रहेगा। आवाज आ रही है ना सबको? केशव? Yes, sir. ओके। सो देन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लास्ट पेपर में बताया। देन फिजिकल प्रोटेक्शन मीन्स हजार्डस जो चीजें होती है जो कस्टमर को पता नहीं, उससे कुछ नुकसान हो सकता है, उनको अवॉइड करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है इसकी सेलर की। अगर वो नहीं करता है और उसको कस्टमर को कुछ नुकसान होता है वो गुड्स से या सर्विस से कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे टाइम में वो प्रोटेक्ट करना की जिम्मेदारी उनकी रहती है। देन फ्यूचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल, फिर देखा कंज्यूमर काउंसिल्स, 3 लेवल्स होते हैं उनके कंज्यूमर काउंसिल के, कंज्यूमर रिड्रेसल के, जो आपने अभी बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और फास्ट डिसीजन होता है उनका, फास्ट ट्रैक पे केसेस चलते हैं यहाँ पर, कि जल्दी से जल्दी कंज्यूमर को वो जो न्याय मिलना चाहिए कोर्ट में। देन प्रमोशन ऑफ राइट्स, स्पीडी रिड्रेसल मशीनरी, प्रमोशन ऑफ राइट्स, उनके जो राइट्स रहते हैं कंज्यूमर के उसको बढ़ावा मिलने के लिए स्पीडीली रिड्रेसल मशीनरी कैसे रहती है, उनकी स्पीडी रहती है कि कभी कई बार का ऐसा होता है कि आप कोर्ट में जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, 3-4 टाइप के कोर्ट्स होते हैं यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले तो क्या बोलते हैं उसको, तालुका प्लेस पे जो रहता है वो एक कोर्ट होता है। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है एक हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। ये अलग अलग जो कोर्ट्स हैं यहाँ पर एक केसेस चलते, जैसे केसेस चलते हैं साल 2 साल 5 साल 10 साल, ऐसे यहाँ पर नहीं होता है। अगर यहाँ पर कोई जज वहाँ पर नहीं है तो दूसरा जज वर्क करता है, अपॉइंट किया जाता है इमिडिएटली, तो स्पीडली वर्क होता है यहाँ पर। एंड प्रोवाइड्स इफेक्टिव सेफ गार्ड्स, यहाँ पर सेफ गार्ड जैसे काम होता है यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। प्रोविजन फॉर बेटर प्रोटेक्शन, देन व्हाट इज गुड्स, गुड्स के जो कंसेप्ट है इनमें एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू forming part of the launch which are agreed to be served before sale or under the contract of sale. Then manufacturer means person who makes goods, जो है goods के अंदर जो goods manufacture कर रहे हैं वो कौन होते हैं? Makes manufacture any goods or parts thereof, does not make a manufacture any goods but assemble parts thereof made or manufactured by others and claims the end product to be goods manufactured by himself. देखिए कई बार मैन्युफैक्चरिंग में अगर कई प्रोडक्ट आप देखें तो पैकिंग के ऊपर देखिए मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटिंग बाय, ऐसा लिखा रहता है। और वो जो कंपनी है, कंपनी के अंडर में 2-3 पार्ट्स रहते हैं काम करने वाली। जो एक कंपनी है, एक कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को, सबऑर्डिनेट को एक प्रोडक्ट बनाने को दिया है, उनका भी नाम वहां पर है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पर जाएंगी फिर। फॉर एग्जाम्पल टाटा ने एक प्रोडक्ट बनाया टाटा के नाम से, और उन्होंने वो ब्रांड का जो उनका टाटा ब्रांड है, टाटा ब्रांड का प्रोडक्शन कई दूसरी जगह चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दूसरी, वहां पर वो भी लिखा जाता है कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और मार्केटिंग करने वाली कंपनी अलग से। वो पूरा कंप्लीट ब्यौरा वहां पर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर एक्ट में वो प्रावधान रहते हैं कि कंज्यूमर में अगर कुछ केस हो रहा है कंज्यूमर से, तो वहां पर उस सब को वहां पर खड़ा किया जाएगा।
प्रोडक्शन किसने बनाया, कौन सी कंपनी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, मार्केटिंग किसने किया है, मार्केटिंग में कोई फॉल्ट है तो, या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हुआ है वहाँ पर, असेसमेंट्स के थ्रू कुछ ज़्यादा बातें बताई लेकिन वहाँ पर वैसे वो प्रोडक्ट में नहीं है, वो सिर्फ सब चीज़ें वहाँ पर रहती है। या अलग अलग कंपनी वहाँ पर काम करती है एक प्रोडक्ट के लिए, या किसी का पेटेंट लेके पेटेंट के ऊपर काम करना है, तो वो सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में आती है। ये causes है to be put his own mark on any goods made or manufactured by the other manufacturer and claims such as goods to be goods made or manufactured by himself. Then the डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद या स्टेट कमीशन के बाद वो जो नेशनल कमीशन रहता है, वहाँ पर नेशनल कमीशन ने जो नोटिफिकेशन निकाले हैं वो नोटिफिकेशन सबको फॉलो करने पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट लेवल के जो कमीशन रहते हैं वहाँ पर उनको। तो अभी गुड्स हो गए, गुड्स के बाद सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन which is made available to potential users and includes the provision of facilities in connection with banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electricity, or other energy board of lodging or both purveying of news or other information, but does not include the rendering of any service free of charge or under a contract of personal service. गुड्स के अलावा सर्विसेज भी ये एक्ट में इंक्लूड है। कौन कौन से सर्विसेज यहाँ पर दिया है, बैंकिंग है, फाइनेंसिंग है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोसेसिंग है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो मेनी थिंग्स है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो ब्रांड नेम है जो कंपनी के ब्रांडेड है, गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो प्रिकॉशन लेते हैं कि प्रॉपर सर्विस चाहे, प्रॉपर वारंटी गारंटी कार्ड दिया जाए गुड्स का। एक एग्जांपल बताता हूँ मैंने बेस्ट प्राइस से एक बैग परचेस किया, तो अच्छे ब्रांड का था, अमेरिकन ऐसे कुछ तो भी था। तो परचेस करने के बाद में मुझे लगा कि थोड़ा सा अलग टाइप का ले लूँ वो बैग, तो मैं वहाँ चेंज करने के लिए गया। तो चेंज करने के लिए जाने के बाद में वो चेंज करने को तैयार थे, लेकिन वो जो वारंटी गारंटी कार्ड रहता है वो मेरे नाम से बना था। वो जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का जो नंबर है वो नंबर का प्रोडक्ट मेरे नाम से गारंटी कार्ड में वारंटी कार्ड में एंटर हुआ था, और वो लेवल पे इमीडिएटली था, तो मैं रिप्लेस करके देता था। अगर वही प्रोडक्ट के ऊपर दूसरे का नाम वारंटी या गारंटी कार्ड पे नहीं आ सकता, इसलिए वो रिप्लेस नहीं होता। देखो इतना प्रिकॉशन अभी लिया जाता है कि एक ही प्रोडक्ट है, उसका नंबर जो है वो नंबर का एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर कहीं पर भी आप चाहेंगे, यही बेस्ट प्राइस में नहीं या किसी और मत के शोरूम में नहीं, कहीं पर भी जाए आप आउट ऑफ कंट्री भी, तो भी आपको वहाँ पर वो सर्विसेज मिलेंगी वो प्रोडक्ट की, या वो चेंज करके मिलेगा कोई प्रॉब्लम आए तो ये ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी के या ब्रांडेड जो नेम रहते ये प्रिकॉशन लेती है। और सर्विसेज के बारे में वैसे ही, अभी सर्विसेज का एक मैंने एग्जांपल दिया था शायद आपको कि ओयो का नाम सुना है आपने, सुना है ओयो? हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? प्रणीता, चंचल, हेलो। हाँ सर, ये ये तो तो ना, ओयो का नाम सुना आपने? ओयो, ओयो क्या चीज नो है? सर। ओयो एक सर्विस प्रोवाइडर जैसे फ्रेंचाइज जैसे काम करता है कि
जो होटल इंडस्ट्रीज है, होटल इंडस्ट्री को उनका नाम देते हो ओयो का। वहां पर कई होटल के ऊपर देखिए ओयो लिखा रहता है, OYO, OYO। वो ब्रांड नेम किस लिए दिया है, होटल किसका है, ओनर दूसरा अलग से वो चला रहा है, लेकिन उसका ब्रांड नेम लिया है उन्होंने सिर्फ। ओयो के अंडर में उनको रजिस्ट्रेशन मिलेंगे, वहां पर जो कस्टमर मिलेंगे उनको। क्यों? जहां पर ओयो का बोर्ड लगा है वहां पर बिन दिक्कत लोग जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर सर्विसेज अच्छी क्वालिटी की मिल सकती है, वो ब्रांड उनको गारंटी रहती है। वो क्या करता है, वो जो ओनर है वो लोग अलग रहता है। जैसे कि पंजाब होटल है यहाँ पर स्टेशन पे, पंजाब होटल ने ओयो का अगर ब्रांड लिया है तो उनको वो सब रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो क्लीनिंग के हो, सर्विसेज के हो, जो भी हो, होटल के सब रूल फॉलो करना है, और उनके हिसाब से वो कस्टमर को सर्विस देना है, पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है। तो वो क्या करते हैं कि उनका वो कुछ परसेंटेज लेते हैं। अगर 2,000 रुपये वहां पर 1,000 रुपये किराया है पंजाब का, पंजाब लॉजिंग या होटल का, तो ओयो का जो ओयो से अगर आप ले रहे हैं सर्विस, तो वही स्टैंडर्ड उनको वहां पर मिलेगा अच्छी क्वालिटी का। तो 1,500 रुपये वहां पर आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो 1,500 में जो परसेंटेज रहेगा 200-300 रुपये उनको किसको मिलेंगे, ओयो वाले को मिलेंगे। और वो जो ओयो का जो फाउंडर है वो रितेश अग्रवाल, ही इज 23 ईयर्स ओल्ड ओनली। इतने कम एज में उन्होंने वो डेवलप किया और बहुत सारा मार्जिन उन्होंने कमाया। बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हुआ उनके, लेकिन बहुत सारा मार्जिन अर्न करके वो चला रहा है। तो ऐसे टाइप के जो रहते हैं सर्विस प्रोवाइडर, वो वो देखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अभी कहीं होटल में अगर खाना खाने जाए तो आप क्या देखते हैं, 2 पैसे ज़्यादा गए तो चलते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, दिमाग को तान नहीं होना। जिस चीज़ के लिए आप जाते हैं अगर वो नहीं होती है, तो वो चीज़ का, वो जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका कुछ मतलब ही नहीं रहता। तो ऐसे टाइप के वो सर्विस रहती है, वो प्रोवाइड करना भी उनका काम रहता है। So today we will stop here.